ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। केजरीवाल साहब ने सही कहा, पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है, वो नकली केजरीवाल है। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। काम के नाम पर वोट नहीं मांगते, राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और ये चीज अब लोग समझ गए हैं और ये लोग असली हिंदू भी नहीं है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? आम आदमी पार्टी का मुकाबला इन सारी पार्टियों के गठजोड़ के साथ है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? पुलिस फोर्स को पंजाब की उसका सम्मान, उसकी डिग्निटी मिलेगी। ऐसे नहीं कि होम मिनिस्टर की सब्जी खरीदने जा रहा है पुलिस वाला, या होम मिनिस्टर की घरवाली को शॉपिंग कराने ले जा रहा है पुलिस वाला। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੌਨਕਲੇਵ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਮਿਲ ਭਾਟੀਆ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਹਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2017 के इलेक्शंस के बाद हमारा वोट शेयर लगातार गिरता गया। एमसी के इलेक्शन में भी नीचे आया, लोकसभा 2019 के इलेक्शन में नीचे आया। तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल जिसे कहते हैं एक तरीके से ओवरहॉलिंग, उस पर बहुत काम किया। और मैं आपको ज़्यादा कैमरे पे नज़र आता हूँ, लेकिन ये सारा काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी गाइडेंस में एक बहुत बड़ी टीम ने किया। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। मैं सारे क्रेडिट का हकदार नहीं हूँ जितना आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन हाँ, एक पार्टी को फिर से उसमें जान फूंक के खड़ा करने का एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में पूरी पार्टी ने किया है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे कहीं ज्यादा कॉम्पिटेंट और कहीं ज्यादा डेडिकेटेड, कमिटेड लोग इस पार्टी में हैं। मैं कैमरे पे शायद ज्यादा नजर आता हूं इसलिए आप मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने इस पूरी पार्टी को पंजाब में एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा किया। और केजरीवाल साहब की लीडरशिप में हुआ है, भगवंत मान साहब की लीडरशिप में हुआ है। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय, इसका क्रेडिट अगर किसको जाता है
तो पंजाब सूबे की आवाम को जाता है। लोगों ने तो हमें अपने कंधों पे बिठाया। 50 साल बादलों ने, कैप्टन साहब ने, अकाली ने, कांग्रेस ने राज किया, लेकिन पंजाब खुशहाल नहीं हुआ, बर्बादी की ओर बढ़ा। इसीलिए लोग रिवायती सियासतदानों से परेशान होकर एक नई पार्टी को मौका देने जा रहे हैं। एक मौका केजरीवाल को देने जा रहे हैं। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੈਗੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कोशिश करते हैं। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਤੇ ਹਿਡਨ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। बाथरूम सिंगर है, हिडन सिंगर नहीं है। और उस गाने का भी एक ट्रेलर हमने जारी करा है, रिलीज किया है। बहुत जल्दी पूरा गाना रिलीज करेंगे, तो आप सुनिएगा। ਉਹ ਗਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਗਾਇਆ? हमारा भी उसमें थोड़ा सा योगदान है। आई एम नॉट द लीड स्पीकर, द लीड सिंगर, बट मेरा भी उसमें योगदान। ਰਾਘਵ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਬੈਠ ਗਏ ਸੱਤ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕੜਛੀ ਘਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ? चन्नी साहब और कांग्रेस पार्टी ये बड़ी कोशिश करती है कि चन्नी साहब को आम आदमी, गरीब आदमी बनाकर पंजाब दी आवाम दे सामने प्रस्तुत किया जावे। चरणजीत सिंह चन्नी साहब किवें आम आदमी, किस तरह दे गरीब आदमी है। 170-180 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है। उनके भतीजे या भांजे के घर से 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां, 21 लाख रुपए का सोना, 16 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी, करोड़ों रुपए के लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, फार्म हाउस के कागजात एक रेड में जब्त होते हैं। अब मुझे बताइए, पंजाब की किस गरीब आदमी के पास इतना पैसा है? चन्नी साहब कहते हैं मैं तो मंजे बुंदा, मैं ऑटो चलांदा सी, मैं साउंड सिस्टम लगाया करता था। पंजाब का कौन सा साउंड लगाने वाला शख्स है जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं? पंजाब का कौन सा ऑटो चलाने वाला शख्स है जिसके घर से 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां मिलती हैं? तो ये सब तो एक ढोंग है जो चन्नी साहब कर रहे हैं। तो केजरीवाल साहब ने सही कहा, पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। वो नकली केजरीवाल है। वो कोशिश करते हैं कि केजरीवाल साहब की तरह बात करें, उनकी तरह आम नजर आए, लेकिन वो आम है नहीं, तो खास आदमी है। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਚਿਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई उनको लोकस स्टैंडा ही नहीं है अपनी बात रखने का। जिन लोगों पे रेते चोरी के पर्चे हुए उनको टिकट दी, जो लोग एनडीपीएस और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के पर्चों में जेल में थे, उन लोगों को उन्होंने टिकटें देके इलेक्शन लड़वाया। तो कांग्रेस पार्टी तो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। और ये क्या पार्टी है, आप मुझे बताएं। कांग्रेस पार्टी का सीएम कैंडिडेट, उसका सगा भाई कांग्रेस के खिलाफ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है बस्सी पठाना में। उनके कपूरथले के कैंडिडेट राणा गुरजीत का बेटा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है सुल्तानपुर लोधी से कांग्रेस को हराने के लिए। तो ये क्या पार्टी है, इसमें क्या डिसिप्लिन है? और ऊपर से लेकर नीचे तक इनके आधे मंत्री, आधे विधायक भ्रष्ट हैं। क्या क्या कोई बताते हैं भाई, कोई इनका नेता है जिसने दुबई में होटल बना लिया है, कोई कहते हैं कोई एक नेता है जिसकी 1200 एकड़ की जमीनें हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो अब ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप सियासत में आगे लाकर पंजाब को चलाने की जिम्मेदारी देंगे,
तो वो अपनी जेब भरेगा, लोगों की जेब नहीं भरेगा। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, परसेप्शन ਦਾ ਫੈਸਲਾ तो इलेक्शंस ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ नहीं कह सकते आप। मार्च में, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपको पता लग जाएगा, तो मार्च तक वेट करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज पंजाब की आवाम इस बात को समझ गई है कि अगर रेता चोरी बंद करनी है, केबल ट्रांसपोर्ट माफिया बंद करना है, अगर पंजाब में ड्रग माफिया पे लगाम लगानी है, तो एक ईमानदार सरकार चाहिए। भगवंत मान साहब, अरविंद केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार लोग हैं। ऐसे लोग आएंगे तो सूबे की कुछ खुशहाली के काम होंगे, बर्बाद नहीं किया जाएगा। अब आप मेरी बात सुने, इन सारे बड़े नेताओं के 7 स्टार होटल बन गए, किसी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, किसी की फैक्ट्रियां लग गई, महल बन गए, फार्म हाउस बन गए, लेकिन पंजाब का खजाना गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। कहते हैं 2.25-3 लाख करोड़ का डेट है, कर्जा है पंजाब पे। 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब पे, 3 करोड़ की आवाम पंजाब की, यानी कि पंजाब के हर शख्स पे 1 लाख रुपए का कर्जा है। डिवाइड कर लो आप, 3 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करोड़, पर कैपिटा डेट 1 लाख रुपए की हर पंजाबी पे है। कोई जवाक पैदा होता है, नया बच्चा पैदा होता है, उसके सर पे पैदा होने से ही 1 लाख करोड़ का कर्जा लग जाता है। तो ये सूबे की हालत बना दी। और 5 करोड़ की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर से उतर के ये नेता कहते हैं कि जी खजाना खाली हो गया, जी पैसे नहीं है जी। बताइए, ये इंसाफ है? ये सूबा है? ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ नहीं होंगे? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने एक मंत्री को, सिटिंग मिनिस्टर को, वजीर को 24 घंटे में तहकीकात करके मंत्रिमंडल से और पार्टी से बर्खास्त कर दिया, निकाल बाहर करा, क्योंकि उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी और वो किसी बिल्डर से पैसे मांग रहा था। केजरीवाल साहब ने अपने मंत्रिमंडल से अपने चहेते मंत्री को बाहर निकाल दिया। कोई जांच नहीं करी, दिल्ली पुलिस, सीबीआई ने नहीं उसे पकड़ा, केजरीवाल साहब ने खुद जांच करी, पाया कि ये बिल्डर से पैसा ले रहा था और अपने मंत्रिमंडल से उस बंदे को उठा के बाहर कर दिया। ये ईमानदारी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या गारंटी आम आदमी पार्टी की कि पंजाब में भी ऐसा करेगी? अच्छा सवाल है। सारी पार्टियां कहती हैं कि माफिया खत्म करेंगे। इस तरह के कैप्टन अमरिंदर भी कह देंगे मैं राणा गुरजीत ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ कैबिनेट। ठीक है जी। अब अकाली दल कहता है कि मैं ड्रग माफिया खत्म करूंगा और मैं ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करूंगा, केबल टीवी माफिया खत्म करूंगा। 24 साल अकाली दल ने पंजाब में सरकार चलाई, माफिया कम नहीं हुआ, माफिया बढ़ा। कांग्रेस भी यही कहती थी कि माफिया खत्म करेंगे, 5 साल से तो सरकार चला ही रहे हैं। एक जगह भी अगर कहीं माफिया कम करके उन्होंने दिखाया हो तो हमें बताएं। तो इन दोनों को तो मौका देके देख लिया ना, अब एक मौका हमें भी दे दो, हमें ट्राई करके देख लो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि सारे माफिया भी खत्म होंगे, पंजाब को खुशहाल भी बनाएंगे, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। पैसे नेता नहीं कमाएंगे, लोगों की जेब में पैसे डाले जाएंगे, वेलफेयर स्कीम्स ऐसी लाएंगे, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं। सारी पार्टियों को ट्राई कर लिया ना, एक वोट ही तो देना है, बटन ही तो दबाना है, इस बार झाड़ू का दबा देना, हमें ट्राई कर लो। ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਔਨ ਅ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। भाटिया साहब, आप हर बार ये कंट्रोवर्शियल सवाल मेरे से पूछते हो। मैं सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब में ही हूं, दिल्ली की जिम्मेदारी है मेरे सर पे, वो मैं निभाऊंगा, वो मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे मेरी पार्टी ने पंजाब में दी है इलेक्शन लड़ाने की, लड़वाने की, लड़ने की नहीं,
वो मैं निभा रहा हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी पार्टी और केजरीवाल साहब की लीडरशिप में हम सब जितने भी हमारे वादे हैं, प्रॉमिसेस हैं, केजरीवाल की गारंटी हैं, वो भगवंत मान साहब की सरकार लागू करेगी। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ और सारियां पार्टियां कर रही हैं। दो चीजें, मैंने जो स्टेटमेंट दी वो झाकड़ साहब की स्टेटमेंट को रिपीट किया। सुनील झाकड़ साहब ने खुद ने, आपने ये बात कही कि मुझे सीएम की दौड़ से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मैं हिंदू हूं। नंबर एक, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, मैंने तो रिपीट करी स्टेटमेंट और कहा कि कांग्रेस जात और धर्म के नाम पर वोट मांगती है। हमने तो किसी जात बिरादरी का नाम नहीं लिया, हमने तो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, फोन नंबर, और कहा बताओ आम आदमी पार्टी किसे अपना सीएम कैंडिडेट बनाए। उसमें जात, मजहब, बिरादरी ये तो देखी नहीं गई। नंबर एक। नंबर दो, भाटिया साहब, पंजाब को पोलराइज करने की, जात और धर्म के नाम पे बांटने की बहुत कोशिशें करी गई, बहुत कोशिशें करी गई, लेकिन ये लोग अपने मंसूबों में कभी भी सफल नहीं हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए। इसलिए क्योंकि पंजाब जात और धर्म के नाम पर बढ़ता ही नहीं है। ये गुरुओं की धरती है, यहाँ सब एक समान है, सब परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं, उनके दरबार में रहते हैं, गुरुओं की धरती पे रहते हैं। यहाँ कोई जात बिरादरी के नाम पे नहीं बढ़ता। नंबर एक। नंबर दो, अगर दलित कार्ड की या दलित वोट बैंक की बात होती है, बीएसपी का जन्म पंजाब में हुआ। काशीराम जी पंजाब की धरती से आते थे, लेकिन अपनी दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए बीएसपी को पंजाब में अपनी सियासत की दुकान बंद करके यूपी जाकर अपनी दुकान खोलनी पड़ी, यहां नहीं चली। मायावती जी 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, एक पंजाब में, एक यूपी में। पंजाब में वो हार जाती हैं इलेक्शन, यूपी में जीत जाती है। इसका मतलब पंजाब वोट बैंक पॉलिटिक्स, दलित वोट, हिंदू वोट, सिख वोट, पंथिक वोट, इन चीजों में नहीं पड़ता। पंजाब गुरुओं की धरती है। ये जो सियासतदान बांटने का काम करेंगे ना पंजाब को, पंजाब उन्हें खत्म कर देगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि पंजाब इज इंडियाज मोस्ट सेकुलर स्टेट। ना इसको कोई बांट पाया है, ना कोई बांट पाएगा। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ पूरी हो चुकी हैं? देखिए, पहली चीज तो देवेंद्र पाल भुल्लर साहब की अपनी वाइफ की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने खुद कहा कि मेरे घर वाले के नाम पे सियासत। मैं इसलिए उस ते सवाल नहीं किया, मैं बीजेपी ते किया। देखिए, बीजेपी बड़ी कन्वीनियंट कम्युनल कार्ड खेलती है। जहां पर हिंदू बन के वोट लेना होता है वहां हिंदू बन के वोट ले लेती है, जहां पर कुछ और बन के वोट लेना होता है कुछ और। दिल्ली में कोई और सियासत करती है, बंगाल में कुछ और करती है, गोवा में कुछ और करती है। गोवा में उनके नेता बीफ खिलाते भी हैं और खाते भी हैं, और यूपी में जब इलेक्शन लड़ने जाती है तो कहती है जी जो बीफ खाते हैं उन्हें वोट नहीं देंगे, उन्हें निकाल बाहर करो, उन्हें किसी और देश भेज दो। तो बड़ी कन्वीनियंट कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, और बीजेपी का चेहरा, असल चेहरा पंजाब के और हिंदुस्तान के लोगों के सामने आ गया है। अब लोग समझ गए हैं कि ये बांट के राजनीति का काम के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, और ये चीज अब लोग समझ गए हैं। और ये लोग असली हिंदू भी नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं। किस तरह? इस तरह क्योंकि वो भगवान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। कभी हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया
कि आप किसी और मजहब के लोगों को प्रताड़ित करो, एक्सप्लॉइट करो, उनके खिलाफ बयान दो, उनके खिलाफ कुछ करो। ये तो हिंदू धर्म नहीं सिखाता हमारा। हमारा हिंदू धर्म तो कहता है कि सब एक समान है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। किन्हों प्रताड़ित कर रही बीजेपी? करती है बहुत लोगों, आपको पता है, मेरे से ना बुलवाएं। तो ये बीजेपी की कोशिशें होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी ना असली हिंदू है और हिंदुओं का नाम, हिंदुओं की जात बिरादरी का नाम इस्तेमाल कर कर वोट लेना चाहती है। तो मेरी अपील है सभी हिंदुओं से कि भारतीय जनता पार्टी का बॉयकॉट करो। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसलिए कि क्यों वंड रही है, पोलराइजेशन कर रही है, इसलिए हिंदू पोलराइजेशन बॉयकॉट करती है। क्यों हमारे समाज को बांटेंगे? कोई, हम सब, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब एक बराबर हैं, सब एक समान रहने चाहिए, प्यार से आपस में रल मिल के। पंजाब के अमन, शांति, भाईचारे को डिस्टर्ब करने की, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिशें लगातार पंजाब में चलती आई हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, एक मिनट भाटिया साहब, पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस आते हैं बेअदबी की कोशिशें होती हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि श्री हरमंदर साहब में बेअदबी की कोशिश हो सकती। इतना पाक स्थान, इतना पावन धरती, वहां पर ऐसी कोशिश हो सकती। फिर हमने देखा कि हिंदुओं के मंदिरों में ऐसी कोशिशें होती। तो कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश, कोई तो शक्ति है, पावर है जो ये कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि पोलराइजेशन हो, इलेक्शंस के आसपास हो। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਊ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। पंजाब इलेक्शन में बीजेपी इज नॉट इवन अ प्लेयर। वो दौड़ में ही नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਨੇ। आपने कहा कि जब बीजेपी को लेकर बात चल रही थी मीटिंग को लेकर, तो आपने कहा कि पंजाब में जिस तरीके से मंदिरों में बेअदबी हुई और दरबार साहब तक में बेअदबी हुई, और आपने कहा कि और आपने उसको इस संदर्भ में कहा कि बीजेपी देखिए जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये इस टाइप की हरकतें करती है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इस टाइप की हरकतें होती हैं। तो अब किसने करी ये तो जांच के बाद पता लगेगा। तो जैसे नवजोत सिद्धू साहब कहते हैं कि ये सब केंद्रीय एजेंसियों की ये साजिश है, आपका क्या मानना है इस पर? मैं वही कह रहा हूं, देखिए मैं बड़ी सोची समझी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ शक्तियां हैं जो एक स्ट्रैटेजी के तहत पंजाब में अमन शांति को भंग करना चाहती हैं, और हमेशा इलेक्शन से पहले यह होता है। 2017 के इलेक्शन से पहले मौड़ में ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है जी। आज तक उस बॉम्ब ब्लास्ट में चार्जशीट तक दर्ज नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन, कन्विक्शन तो छोड़ दो, चार्जशीट तक दर्ज नहीं करी पंजाब पुलिस ने। तो जितनी ऐसी हरकतें हुई, घटनाएं हुई, उसका इंसाफ मिलेगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। और जो असली गुनहगार हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उन तक आम आदमी पार्टी की सरकार पहुंचेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। जितने भी नेता आपके जाते हैं, चाहे पंजाब के बड़े रिनाउंड एडिटर रहे हैं, कंवर संधू साहब हैं, या बाकी और भी अभी आपके कई उम्मीदवार जो है छोड़ के चले गए टिकट मिलने के बाद, तो एक बात ऐसा क्यों कहते हैं कि केजरीवाल साहब बहुत बड़े डिक्टेटर थे? ये बात वो लोग कहते हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और जो 14 तुगलक लेन दिल्ली के दरबार में खड़े रहते हैं बाहर, कि राहुल गांधी जी बाहर आए और उनके दर्शन हो जाए। चन्नी साहब भी ये कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी तो वहां से चलती। चन्नी साहब एक दिन में सीएम बनने के बाद दिन में 4 बार अपने हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी जी के घर जाते थे मिलने। जो लोग छोड़ के जाते हैं, जिनकी टिकट आम आदमी पार्टी ने काट दी, जिनको जो ओहदे चाहिए थे वो नहीं दिए, वो आरोप लगाते हैं, उनको लगाने दीजिए। लेकिन पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल साहब से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आजमाना चाहते हैं। आज हमारे आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है पंजाब में या कहीं पर भी, वो केजरीवाल के नाम पे पड़ता है, झाड़ू के निशान पे पड़ता है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम पे पड़ता है। पंजाब के लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब से। तो जो लोग कह रहे हैं ये सब, उन्हें कहने दीजिए, कोई बात नहीं। उनकी इन बातों का भी स्वागत है। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਔਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ बीजेपी टूट चुकी है। ये सारी बातें तो मोदी साहब ने 2014 के इलेक्शन में भी करी थी कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, फार्मर्स की जो इनकम है उसको दुगना करेंगे, तो आज तक लागू तो हुआ नहीं। और बीजेपी के वादे का कोई मतलब ही नहीं है पंजाब में, सरकार तो उनकी बन नहीं रही, तो जो मर्जी वादा कर दें, वो सूरज चांद सितारे भी आपको दे दें, सरकार तो उनकी बन नहीं रही। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ स्टेट ਨੂੰ ना हो पाए। देखो, ये डबल इंजन की जो सरकार का कॉन्सेप्ट बीजेपी लेकर जाती है, बिहार में, राज्य में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी, सेंटर में भी बीजेपी, बिहार में कोई बड़ा कमाल कर दिया उन लोगों ने। यूपी की हालत देख लीजिए, स्टेट में भी बीजेपी, सेंटर में भी बीजेपी, क्या कर दिया उन लोगों ने? क्या अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे अस्पताल बना दिए। और दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में स्टेट लेवल पे केजरीवाल की सरकार, ऊपर मोदी की सरकार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शानदार काम करके दिखाया। तो जरूरी है बल्कि कि एंटी बीजेपी सरकार बने, अरविंद केजरीवाल की, भगवंत मान की सरकार बने पंजाब में। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? दो चीजें करेंगे और ये अनाउंसमेंट हमारी पार्टी ने पहले भी करी। पहली चीज, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। ये एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 चीजें लिख कर दी हैं कि ये हर सूबे में लागू हों, कि कैसे पुलिस का सियासीकरण ना हो, अपने आप काम करे। और पंजाब में खास करके जो पर्चे होते हैं एमएलए के कहने पे, वो बंद होंगे, हमारी सरकार आएगी जब। और दूसरी चीज, पुलिस वालों को डिग्निटी और सम्मान, इज्जत दी जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, आपने सुना उनका बयान कि हमारा ये एमएलए फोन करता है तो पुलिस वालों का ये हो जा। मैं तो रिपीट भी नहीं करना चाहता, सिद्धू साहब ने कहा, मंच से कहा, कई बार कहा। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुलिस वाले बहुत मेहनत करते हैं, बेचारे 20-20 घंटे, 22-22 घंटों की ड्यूटी करते हैं। 12 रुपए का ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है एक पुलिस वाले को। वर्दी भी आप खरीदनी पड़ती है, धुलवानी पड़ती है। किन हालातों में वो काम करते हैं, कभी ये देखने की कोशिश किसी नेता ने नहीं करी। आम आदमी पार्टी आएगी तो पुलिस फोर्स को पंजाब की, उसका सम्मान, उसकी डिग्निटी मिलेगी, और जिस काम के लिए वो आए हैं वो काम करवाएंगे। ऐसे नहीं कि होम मिनिस्टर की सब्जी खरीदने जा रहा है पुलिस वाला, या होम मिनिस्टर की घरवाली को शॉपिंग कराने ले जा रहा है पुलिस वाला। जो उसका काम है, जिसके लिए वो फौज में, फोर्स में भर्ती हुआ है, वो काम करवाएंगे, डिग्निटी देंगे। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। कन्विंस करेंगे और लागू करवाएंगे भाटिया साहब, विश्वास रखो आप, चिंता ना करो। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। राघव जी, एक चीज ये बताइए कि आम आदमी, आप खुद ही बोल रहे हो कि आम आदमी की पार्टी ही होगी, तो आम आदमी जो पंजाब में आती है तो उसके प्रायोरिटी के जो मसले होंगे वो क्या, मतलब लोगों को क्या देंगे वो? पहली चीज तो केजरीवाल साहब की जो गारंटियां हैं जो हमने अनाउंस करी, उनको सबसे पहले लागू करेंगे। बुनियादी सुविधाएं, बेसिक कम्युनिटीज पे खासी फोकस होगा शुरुआत के कुछ समय। जैसे हमने कहा, हम बिजली मुफ्त करेंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। पंजाब में लंबे लंबे 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं, बिजली देंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करेंगे, हर पिंड में एक क्लिनिक खोलेंगे, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, कैसे इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, और किसानों के लिए कैसे एग्रीकल्चर को, खेती को, किसानी को एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बनाया जाए। ये सारा ब्लूप्रिंट, सारा प्लान केजरीवाल साहब ने, भगवंत मान साहब ने, हम सब ने बैठ के बनाया। दूसरी चीज, हम आम आदमी पार्टी वाले
ये नहीं कहते कि सब कुछ हमें आता है, कि हमें ही पता है कि किसानों का भला कैसे होना है, या हमें ही पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा इशू है पंजाब का, वो कैसे कम करना। पर हम ये जरूर कहते हैं कि हम मिल बैठ के आपसे बात करके आपकी नीति बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो जैसे जलंधर में कहा जाता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी, जलंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए अगर हम कुछ पॉलिसी बनाते हैं तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, विचारेंगे और उनसे बात करके जो पॉलिसी बनेगी उसे लागू करेंगे। हम आइसोलेशन में सिसवान फार्म हाउस में बैठ के सरकार नहीं चलाएंगे, सड़कों पे खड़े होकर सरकार चलाएंगे। ये सबसे बड़ा फर्क होगा आम आदमी पार्टी की सरकार में और सरकार में। राघव जी, एक चीज और थी, मॉडल हम दिल्ली का पेश करते हैं, ठीक है, आप भी दिल्ली से आते हो, दिल्ली जाते भी हो बाय रोड, तो यहाँ से जलंधर से अगर हम दिल्ली जाते हैं तो यहाँ से कम 4 से 4.5 घंटे लगते हैं, या ज्यादा 5 घंटे लगते हैं, और दिल्ली एंटर करने भी 4 घंटे का। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मेन रोड की बात कर रहा हूँ, शेरशाह सूरी मार्ग की बात कर रहा हूँ मैं। उसको भी ठीक करेंगे, उसको भी। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी नहीं बनेगी वो सूबा तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो हर सूबे से कनेक्टिविटी कह रहा हूं। आज पंजाब में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं चलती है? यहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियां लगा ली, हिमाचल बद्दी में फैक्ट्रियां लगा ली, जलंधर में, लुधियाना में फैक्ट्रियां बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि यहां पे फैसिलिटी नहीं है, इन्वायरमेंट ही नहीं है काम करने का। आज कनेक्टिविटी ही नहीं है। कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनोवेशन, ये चीजें जब तक नहीं होंगी कोई सूबा तरक्की नहीं कर सकता। उसको रिवाइव करने की जो एक प्लानिंग, एक पॉलिसी है, वो आम आदमी पार्टी के पास है, हम लागू करेंगे उसे। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਰਵੇ ਆਇਆ, 60 ਤੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਡ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ पेड सर्वे करा देंगे। सुखबीर बादल कई मंच तो बोल चुके हैं। चलो, देखिए जी, मैं बादल साहब को कहना चाहता हूं, शिरोमणि अकाली दल को कहना चाहता हूं कि सर्वों पे विश्वास ही मत करो, लोगों में उतर जाओ, जनता में जाओ, पिंडों में विचरो, लोगों से पूछो किसको वोट दे रहे हैं। लोग बोलेंगे आम आदमी पार्टी। आज आप एक काम करना, ये शो खत्म करके अपने स्टूडियो के बाहर जाएंगे आप, पहले जो 10 आदमी मिले उनसे पूछना कि आने वाले इलेक्शंस में आप कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हो। 10 में से अगर 8 आम आदमी पार्टी ना कहें तो आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। ये मैं तो इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। इतना कॉन्फिडेंस सुखबीर बादल में तो नहीं है, मेरे में है, क्योंकि मुझे पता है हमारी पार्टी क्या, हमारी पंजाब सूबे की आवाम इस बार आम आदमी पार्टी को जिताना चाहती है। इसमें हम में कुछ नहीं है भाटिया साहब, ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज करके दिखा दी। हम तो साधारण से, ऑर्डिनरी से लोग हैं, अपना काम छोड़कर, अपना करियर छोड़कर आए हैं। सियासत में करियर बनाने नहीं, करियर छोड़कर सियासत में आए हैं कि सियासत को साफ किया जाए, देशभक्ति, सूबे की तरक्की के लिए आए हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इस बार पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को कंधे पे बिठाकर जिताने वाले हैं। ये आप खुद देखिएगा, महसूस करिएगा, आज जरूर करिएगा शो के बाद। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं तो कह रहा हूं मुकाबला है, ਹਾਂ, मैं नहीं कह ਕਿਹਦੇ रहा। ਨਾਲ ਹੈਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? आम आदमी पार्टी का मुकाबला इन सारी पार्टियों के गठजोड़ के साथ है। 2022 पंजाब इलेक्शन इज केजरीवाल वर्सेस ऑल, भगवंत मान वर्सेस ऑल। ये सारी पार्टियां रल के मिल के काम करेंगी। ऐ ना समझो कि अकाली दल बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है या कांग्रेस अकाली दल के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। जिस सीट पे अकाली दल जीतता नजर आएगा, कांग्रेस उसे सपोर्ट करने का काम करेगी। जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट थोड़ा सा ठीक दौड़ में होगा तो वहां अकाली दल उनको स्ट्रांग करेगा। इन सबका एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद, कि केजरीवाल को, भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी को पंजाब में ना आने दो। क्योंकि अगर एक बार पंजाब में आ गए तो इन लोगों की सियासत की दुकानों पे कम से कम नहीं तो कम से कम 20-25 सालों के लिए ताले लग जाएंगे। इनकी दुकानें, जैसे इन लोगों ने लुधियाने में और जलंधर में फैक्ट्रियां बंद करी है ना, ऐसे इनकी पार्टी बंद हो जाएगी। इन्हें ये डर है, और इसीलिए पिछली बार भी ये हुआ था। यहां तक कि पिछली बार तो
नरेश गुजराल साहब ने, सुखबीर बादल साहब ने मीडिया के सामने ये कहा था कि बीजेपी ने वोट ट्रांसफर कराया, अकाली दल ने और बीजेपी ने अपना वोट निकालकर कैप्टन साहब की कांग्रेस की झोली में डाला था कि कांग्रेस हराती नजर आ रही है या फाइट में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी से, तो हम तो फाइट में है नहीं, अपना वोट इधर दे देते हैं, शायद ये हरा दें। तो ये सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। इसीलिए मैं सारी जनता को कहना चाहता हूं, ध्यान रखियो, बहुत ध्यान रखियो इस बार। ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? प्रूफ की लोड ही नहीं है। गुजराल साहब आप ये कह रहे हैं, ਉਹ ਪਿਛਲੇ सुखबीर बादल 2017 ਦੀ ਗੱਲ साहब, ਕਰ ਰਹੇ। नहीं इस बार भी यही हो रहा है। ਹੂੰ, आप खुद चेक कर लेना, खुद पता कर लेना, यही हो रहा है। ये लोग रल के मिलके काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये सब अंदर से एक है। फॉर्मल अलायंस अकाली दल और बीजेपी का अब ना रहा हो, लेकिन इनफॉर्मल अलायंस आज भी है। ये एक ही है, अकाली दल और बीजेपी में फर्क नहीं है। चन्नी साहब का, जैसे कैप्टन साहब का बेटा, उस पे ईडी के मुकदमे थे, तो कैप्टन साहब का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास था। अब चन्नी साहब की पूरे परिवार पे ईडी के मुकदमे हो गए, चन्नी साहब का रिमोट कंट्रोल भी मोदी जी के पास है। तो सारी पार्टियां बीजेपी रिमोट कंट्रोल से चलाएगी और वो सिर्फ ये चाहती है कि केजरीवाल को रोक लें। यही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 17 में लोग भी नहीं समझ पाए थे इस बात को, हम भी नहीं समझ पाए थे इस बात को। इस बार हमने भी समझ लिया और लोगों ने भी समझ लिया। एक आखिरी सवाल राघव जी ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। राघव जी, राजनीति और अपराध का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है शुरू से ही, और राजनीति में अपराध का क्रिटिसिज्म भी बहुत होता रहा है। हर एक पार्टी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को राजनीति में टिकट देने का विरोध भी करती रही है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो सभी पार्टियां टिकटें दे देती हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि इनको सार्वजनिक किया जाए, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। लेकिन कोई पार्टी खुद क्यों इनिशिएटिव नहीं लेना चाहती, खुद क्यों नहीं सार्वजनिक करते इसको आके आकर? क्योंकि अभी तक ऐसा देखा नहीं भी किसी पार्टी ने खुद आके सार्वजनिक करने की कोशिश की हो कि हमने इस अपराधी को टिकट दी और उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है अपराध का। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं जरूर ये आपको बता सकता हूं कि हम लोग किसी भी शख्स को टिकट देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, हम कोई ऑडिट कंपनी भी नहीं है, लेकिन एक माड़ी मोटी असेसमेंट हम लोग जरूर करते हैं कि वो शख्स ईमानदार है कि नहीं है, उसकी छवि कैसी है, उस पर कोई गंभीर मुकदमे तो नहीं है। दो टाइप के मुकदमे होते हैं, एक होते हैं सियासी मुकदमे। मेरे पे कई सियासी मुकदमे चल रहे हैं, मैं कहीं धरना प्रदर्शन करने चला गया, मेरे पे पर्चा दर्ज हो गया। अरविंद केजरीवाल जी पर 32 मुकदमे चल रहे हैं, सब सियासी हैं। और एक होते हैं गैर सियासी मुकदमे, कुछ उसने अपराध किया, क्राइम कराओ। ऐसे क्राइम वाले मुकदमे जो सियासत से प्रेरित ना हो, वो तो समझ में आते हैं, उस पर बैठ के बात हो सकती है कि ये सियासी है कि नहीं है। लेकिन जो सियासत से प्रेरित ना हो और गंभीर मुकदमा हो, तो आम आदमी पार्टी वाले कभी भी ऐसे शख्स को टिकट नहीं देते। एटलीस्ट मैं अपनी पार्टी का आपको बता सकता हूं। एक लास्ट सवाल ਸਰ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 20-25 ਤਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾइव ਕਰਨ वास्ते की करोगे? देखिए जी, इंडस्ट्री रिवाइवल के लिए 10 बड़े पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लोगों से साझा करें। कैसे एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट देंगे, ऑफिसर राज जो चलता है, रेड राज, टैक्स राज, उसे खत्म करेंगे। इंसेंटिवाइज करेंगे कि क्यों आप लोगों को इंडस्ट्री लगानी चाहिए, क्यों आप लोगों को नौकरियां देने वाला बनना चाहिए। कैसे कैसे हम पूरी इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे, उसके 10 बड़े पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने आप सबसे मोटे मोटे तौर पे साझा करें। उसके अलावा हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। हम ऐसा माहौल पंजाब में आने वाले समय में क्रिएट करेंगे कि वो पंजाब में अपना व्यापार बंद ना करे बल्कि शुरू करे, और जो बंद कर दूसरे सूबों में चले गए वो भी उन सूबों से वापस आकर पंजाब में अपना काम करे। और ये मैं आपको तब कह रहा हूं जब दिल्ली में हमने करके दिखाया। यहां तो आज किसी भी आप छोटी सी छोटी फैक्ट्री में भी चली जाइए तो 10-10, 15-15 जनरेटर चलते रहते हैं सुबह से शाम तक, लाइट ही नहीं आती, ना पावर है, ना कनेक्टिविटी है, ना सरकार इंसेंटिव देती है। ऊपर से नेता आ जाता है, पॉलिटिशियन आ जाता है, वो कहता है भी मेरी 5% डाल दे, इसमें 20% डाल दे
40% डालते तो होता है, आपको सबको पता है कितने बड़े बड़े होटल, कारखाने, ब्रेड बनाने से लेकर शॉल बनाने की फैक्ट्रियां इन नेताओं ने ले ली। तो ये सब चीजें बंद होंगी और एक ऑनेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाएगा। आज हम पहले सुना करते थे कि किसान सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। अब पिछले दिनों से आप सुन रहे हो कि व्यापारी भी आत्महत्या कर रहा है। आज हम इस लेवल तक आ गए हैं कि पंजाब में व्यापारी भी आत्महत्या कर रहा है, इतना बुरा दौर है। तो वो खत्म करेंगे। और उस दिन भी केजरीवाल साहब ने भी ये बात कही थी, भाटिया साहब, कि व्यापारी को सेफ्टी देना जरूरी है। आज कितनी किडनैपिंग्स होती हैं व्यापारियों की, दुकानदारों की, बड़े से लेकर छोटे की दुकानदार, फिरौती होती है, किडनैपिंग्स होती है। एक लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा होने वाला है। पंजाब के अंदर आप खुशहाली से रहें, लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, तगड़ी होकर लागू हो, ये हम आने वाले समय में करेंगे। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। और नहीं आ रही ਸੁਣ ਲਓ बातें ਸੁਣ ਲਓ सब। ਸੁਣ और छड्डो ਲਓ, परे। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 49 ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਲਪਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।